Morning students, as we have started with the chapter cubes and cube roots and we have also completed exercise 6.1, proceeded towards exercise 6.2 and in last Zoom meeting we have done and discussed the prime factorization method, that is the method to find the cube root. We have to find that the cube root by prime factorization method. We have seen it and continued. We did it up to question 1 part 3. Now to save time I have done question 4. I have actually, if I would have started doing this, the figures are the number of digits in each part of the question is very much more. Large numbers are there, so I have already solved it. So first is 2700. I have started with 2, 3 and 5. And this way I have found the factors. जो factors मुझे मिला है उसको group of 3 में कर लिया underline और उसको लिखा and I have written it is equal to 2 into 3 into 5 and that is 30. So as we have discussed, and it is method is very easy. You know better. You have learned how to find the cube root by prime factorization. So this I have due to I should not, I didn't wanted to waste time in solving this, so I have already done, and more I will be insisting on the method to solve the cube root, the not by prime factorization, that is by estimation. So that we will be concentrating more. Now again 15625 I found the factors. I got 6 times 5 grouped in two parts, group of 3 triplets, and I got 25. Then is 13824. I found the factors, underlined it. You can, if you have any trouble, you can see it where you have stuck up. So in this way I got the cube root as 24. Then is 110592. Again I found the factors. I got it, the group of 3. 12 times I got 2, underlined it. Similarly 3. And I got it as 48. Then is 8th one, 46656, found the factors. Group of 2 I have underlined it and got it as 36. So in this way I have solved everything. I have already solved it in order to save your time, because you are very much unknown about the method. If you are stuck up, you can do it. 9th and 10th I am giving as homework that you have to do it. Right? Now question 2, if you look, it is true or false, you have to do it in textbook itself. First is cube of any odd number is even. No, we have discussed in property, so that is false. First is false. Second, a perfect cube does not end with 2 zeros. Yes, perfect cube always end with 3 zeros. So this is true. Third one, if square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. Yes, this is true, because if you take 5, 5 square is 25, 25 again you multiply it, it will give 125. So it is true. Fourth one, there is no perfect cube which ends with 8. No, it is false, because 2 cube you get take, it is 8. The cube of 2 digit may be a 3 digit number. No, it is false. Cube of 2 digit number may have 7 or more digits. No, it is also false. So cube of a single digit number may be a single digit. Yes, it is true. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 9. So it is true. Everything you have to do it in textbook itself. Now we will go to another method, that is estimation of cube root. But not by prime factorization method. So that is just cube root, topic is cube root by estimation method. So that we will see, and then you will solve question 3. So that method is very important. You have to learn it. You may get questions based on that method. Now to find the cube root by estimation method. Now first I will start with the, I have just written the cubes of number from 1 to 20. अभी 1 क्यूब का 1 नहीं आता है, 2 क्यूब का 8 आता है,
3 cube it is 27, 4 cube you can observe, you know how to find the cube. Now if you observe that if you find the if you are getting 8 as the answer, that means the unit digit of the number is 2. अभी जैसे यहाँ पे 12 क्यूब तो 1728 आया है, इसका मतलब इसका अगर यूनिट डिजिट 2 है, अगर आप क्यूब निकाल रहे हो, अगर उसका आंसर का यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब जो नंबर का क्यूब है इतना तो पक्का है कि उसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा. दैट मीन्स if you want to find the cube root of certain number and its unit digit is 8, that means the cube root of the number, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा. सिमिलरली अगर आप 7 देखो, अभी यहाँ देखो 27 का अगर क्यूब रूट लिखो तो 3 आएगा. इतना हिंट तो है कि अगर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है कोई क्यूब कोई नंबर का, तो उसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 आएगा. आप यहाँ 13 में देख सकते हो, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो क्यूब रूट निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 13 होगा. क्यूब रूट अगर निकालते तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 13, मतलब 3 होगा. 3 क्यूब रूट का जो नंबर आ रहा है, अभी इसका क्यूब रूट तो 13 ही आ रहा है, लेकिन उसका डिजिट 3 ही होगा. अभी यहाँ 4 का, यहाँ देखिए अभी यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसका मतलब अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आपको आंसर भी का यूनिट डिजिट भी 4 ही आएगा. सिमिलर इफ यू लुक फॉर 14, इसका यूनिट डिजिट तो 4 आ रहा है क्यूब निकालने के बाद. क्यूब निकालने के बाद अगर आप गेस कर सकते हो कि अगर ये क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब जो भी क्यूब रूट हम निकाल लेंगे उसका नंबर, जो नंबर आएगा उसका डिजिट तो 4 ही होगा. सिमिलरली फॉर 5, अगर आपको बोला है कि ठीक है आपको क्यूब रूट नहीं निकालना है, दिस इज एस्टिमेशन मेथड, ये नंबर दिया है, आप इतना बता दो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा. तो आप क्या करोगे, जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट देखोगे. अगर 5 है, इसका मतलब वो नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 5 ही है. अगर 4 आ रहा है आपके आंसर में लास्ट डिजिट, इसका मतलब उसका जो भी क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 ही होगा. नाउ सिमिलरली फॉर 6, अगर जो नंबर निकाल रहे हैं उसका आंसर 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो क्यूब रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा. और याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्यूब रूट आपको मालूम है निकाल भी सकते हो, आप देख सकते हो. अभी जैसे इसका क्यूब रूट आंसर तो 4096 है, आप बताओ, जस्ट एस्टिमेट करो कि इसका क्यूब रूट क्या होगा. आप क्या करोगे, इसका यूनिट डिजिट देखोगे, क्या आ रहा है? 6. इसका मतलब जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट तो 6 ही होगा. अगर 3 आ रहा है, इस नंबर का बोला है चलो क्यूब रूट निकालो और मुझे यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या करोगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, दैट इज 3. तो आप देख सकते हैं जहां 3 यूनिट डिजिट है, इसका मतलब जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट तो 7 ही आएगा. सिमिलरली फॉर 8 का क्यूब रूट है 52, 512. वैसे अगर तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 2. इसका मतलब अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगा. फॉर 18, मतलब आप यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स. सी फॉर 8 द यूनिट डिजिट इज, यू ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट हियर, हियर एंड हियर. एवरीवेयर यू विल गेट द सेम थिंग. जैसे 5 के लिए 125, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है. 15 के लिए इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसके लिए आंसर का भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा. 14, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 4 ही आएगा. 3 है सी, तो जो भी आंसर है उसका यूनिट डिजिट 7 ही आएगा. सो अगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
आपको क्यूब्स तो थोड़े बहुत याद आ ही जाएंगे, यू कैन डू इट बाय कैलकुलेट वेरी फास्ट। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जहां यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट तो 3 ही होगा। अगर 4 आ रहा है तो उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अगर यूनिट डिजिट कोई नंबर का 5 है तो अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर 6 है कोई नंबर का तो अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका डिजिट 6 ही होगा। यू कैन सी ऑल्सो, इसके जगह 26, 27 कोई भी नंबर लो, टेंस, 100, 1000, लेकिन यूनिट डिजिट तो वो ही निकलेगा। एंड इट इज कॉमन सेंस, क्योंकि आप अगर देखेंगे 7 इंटू 7 49, 7 9 इंटू 7 63, ये तो फिक्स ही है, यूनिट डिजिट की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। अगर 2 इसका यूनिट डिजिट है तो अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो ये तो पक्का है कि उसका जो भी नंबर निकलेगा उसका क्यूब रूट, उसका यूनिट प्लेस तो 80 होगा। अगर कोई नंबर का 9 आ रहा है तो जो भी आप क्यूब रूट निकालोगे तो उसका क्यूब रूट 9 ही निकलेगा। यस, सी हियर 9 9 are 81, 81 into 9, आपको बस यूनिट डिजिट ही देखना है। सो दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन मेथड, ये आपका बेस है, राइट। Now you want to find this by the estimation method. तो ये जो था आपका to find the unit digit of a number by looking at the unit place of the number to for which you have to find the cube root. अभी अगर ऐसा कोई नंबर दिया है, first step is in group of 3 you just divide the number in group of 3. यहाँ पे स्टार्ट करो आप, ग्रुप ऑफ 3 में मैंने किया, 1 2 को अंडरलाइन किया, इसके आगे कोई नहीं है। तो अब मैं लूंगी फर्स्ट ग्रुप 167। तो अभी इसको ग्रुप में इसके लिए डिवाइड किया है कि जो आंसर आएगा, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा आंसर है, इसका वंस होगा और एक टेंस। दो ग्रुप है तो दो डिजिट का मेरा आंसर रहेगा। पहला ग्रुप एस्टिमेशन, जो भी आंसर आएगा फर्स्ट ग्रुप डिसाइड करेगा वंस प्लेस। जो भी आप फर्स्ट ग्रुप से क्यूब एस्टिमेशन कर रहे हो, प्रोसेस में बताऊंगी, वो आंसर डिसाइड करेगा आंसर का वंस प्लेस। सेकेंड ग्रुप जो है, दिस इज सेकेंड ग्रुप, वो डिसाइड करेगा, जो आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा आंसर का टेंस प्लेस, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड into two groups, group of 3 and here. Now 167, अभी इसका what is the unit place of 167? Unit place of 167, unit digit of 167 is 7. इसका मतलब इसका क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं, देखो जहां 7 आ रहा है, जहां लास्ट में 7 आ रहा है, अगर आप क्यूब रूट निकालते हो, जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट तो 3 ही होने वाला है। सो यू हैव टू राइट द यूनिट डिजिट of cube root is 3। निकल गया, आपको यूनिट डिजिट निकल गया, 3 आएगा, तो जो आंसर यहाँ पे यूनिट डिजिट का आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, ये आपका आंसर है। आपने नंबर का यूनिट डिजिट निकाल दिया, वो हो गया 3, वो निकला हमारा फर्स्ट ग्रुप से। अब लो सेकेंड ग्रुप। Now second group will decide, second group में है 12। अब जो सेकेंड ग्रुप से जो आंसर आएगा वो हमारा जो भी निकलेगा वो आंसर का टेंस प्लेस डिसाइड करेगा, राइट। नाउ सेकेंड ग्रुप है 12। नाउ 12 कम्स इन बिटवीन वे क्यूब ऑफ
व्हाट नंबर, अभी 12 किसके बीच में आता है, क्यूब्स, अभी 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब आता है 27, तो 12 तो इसके बीच में ही आता है, राइट? सो यू कैन राइट 12 इज बिटवीन 2 cube and 3 cube. 2 cube is 8, 3 cube is 27. So 12 comes between 2 cube and 3 cube. Right? इसका और जब आपका ये कंडीशन डिसाइड हो गया, always now you will the answer the tens place will be the smaller number. अभी आपने कंडीशन डिसाइड कर दी, 12 किसके बीच में आ रहा है, 8 के और 27 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब छोटा 2 है या 3 है, जो छोटा है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। मतलब आपको कंडीशन देखना है किसके बीच में आ रहा है, और छोटा जो नंबर है उसको टेंस प्लेस में डालना है। सो यू हैव टू राइट देयरफॉर नाउ एज 2 इज स्मॉल, 2 इज स्मॉलर, the tens place will be 2. Understood? So again I am repeating, these two examples are given in third question and this method is important. पहले आप डिवाइड कर दो ग्रुप में, इन ग्रुप ऑफ 3, एक ग्रुप में 3 डिजिट रहेंगे। पहला ग्रुप आया 167, जो आंसर आ रहा है वो हमारे जो भी निकल रहा है फर्स्ट ग्रुप से नंबर, वो हमारे आंसर का वंस प्लेस होगा। सेकेंड ग्रुप से जो भी आ रहा है नंबर, वो टेंस प्लेस, जो भी डिजिट आ रहा है वो टेंस प्लेस होगा हमारे आंसर का। तो कैसे, नाउ वंस ग्रुप का हम लास्ट प्लेस देखेंगे, दैट इज 7, वो वंस प्लेस है। तो जब आपका 7 आता है लास्ट डिजिट, दैट इज द यूनिट डिजिट, इसका मतलब जो भी आप क्यूब रूट निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट तो 3 ही होगा। सो देयरफॉर यूनिट डिजिट इज 3, तो आंसर का यूनिट डिजिट मेरा 3 आ गया। अब मैं सेकेंड ग्रुप देख लूंगी। सेकेंड ग्रुप किसके बीच में आता है, सेकेंड ग्रुप आता है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। तो जो सबसे छोटा है वो मुझे टेंस प्लेस में लिखना है यहाँ पे। सो इसमें लिखना है देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 12167 is 23, and this is estimation method. Now second one, again we will do the same thing. उसको ग्रुप में डिवाइड कर दो। फर्स्ट ग्रुप में आता है 768। अभी उसका यूनिट प्लेस देखो 8, 2 क्यूब इज 8। अभी आप देखोगे 8 आ रहा है, इसका मतलब जो भी डिजिट है उसका क्या होगा 2। So you have to write as unit digit is, so the cube unit digit of cube root is 2। इसका मतलब हमारे आंसर का जो भी है वंस प्लेस वो 2 हो गया। अभी सेकेंड ग्रुप लेना है। सेकेंड ग्रुप आता है, सेकेंड ग्रुप है 32। अभी 32 किसके बीच में है वो डिसाइड करो। क्यूब्स देखो, 32 आता है 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में, तो आपको लिखना है 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में ये 32 आता है। इसमें छोटा कौन है, 3 या 4 है? 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब मेरे आंसर का टेंस प्लेस होगा 3। सो यू कैन राइट दिस स्टेप एज 3 is smaller, the tens place will be 3, and you have to write the answer cube root of 32768 is 32. This is called estimation method. अगर आप क्यूब भी निकालोगे 32 का तो यही आएगा। वापस इसको डिवाइड करो। फर्स्ट ग्रुप, दिस इज 17576, फर्स्ट ग्रुप है 576। इसका लास्ट डिजिट देखो 6 आ रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर आ रहा है 6 आ रहा है। ये करने की आप करके भी देखो यार, 6 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए नंबर का
6 ही होना चाहिए। आप करके भी देख सकते हो 1 क्यूब 5 क्यूब। So you can so write the unit digit of 1 of 576, ये तो 6 है, so the cube root, the unit digit of cube root is 6. अभी सेकेंड ग्रुप लो 17। सेकेंड ग्रुप की क्या मेथड है, 17 किन दो क्यूब के बीच में है, अगेन बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, यू कैन राइट 6 is 2, इसके बीच में है। इसका मतलब आंसर का यूनिट डिजिट तो मुझे पता चल गया, वो है 6। 2 छोटा है या 3 छोटा है, 2 छोटा है, इसका मतलब टेंस प्लेस 2 ही होगा मेरा। So you have to write again the same statement, as 2 is smaller, the tens place will be 2, and you have to write cube root of 157,576 is 26. Yes? Now fourth one, again I will divide. 3 में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे आंसर का वंस प्लेस और टेंस प्लेस चाहिए। दो ग्रुप है तो आंसर का 2 ही डिजिट होगा। अब फर्स्ट ग्रुप का देखो लास्ट डिजिट। नाउ आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट। इसका डिजिट 5 है, इसका मतलब जो भी क्यूब रूट है उसका तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 5 5 are 25, 25 5 are 125। यूनिट डिजिट कहीं चेंज नहीं होने वाला है, तो ये 5 आ गया। तो फर्स्ट ग्रुप से आपको यूनिट डिजिट मिल गया। अब लो 857, वो किसके बीच में आता है? ये आता है यहाँ पे 857 आता है 9 और 10, 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में। तो 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में ये 857 आता है। अब 9 और 10 में छोटा कौन सा है? 9 छोटा है, इसका मतलब मेरा टेंस में आएगा 9। तो मेरा आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 857,375 आएगा 95। This is the way you have to do. Now there is one question 4913, वो भी दिया हुआ है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया। ये थर्ड क्वेश्चन में ये और ये दिया हुआ है, that I have solved। अभी आप आराम से कर सकते हो। 4913 इसका मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप का लास्ट डिजिट देखो 3 है, 3 आ रहा है, मतलब क्या, जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 7। अब देखो 4, 4 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, इसमें छोटा कौन है? 1। So here comes 1. See here, 17 is the cube root of 4913 will be 17. Right? So this completes your question 3. Now I will be giving assignments whatever I have completed. And what if you have any doubt regarding this, then please ask me. You are free to contact at any time.